Good morning students. In the last video of class 11th accountancy we discussed the important chapter related to the books of original entry, that is journal. Under this chapter we discussed format of journal and meaning of double entry system and two important rule for journalizing, that is the traditional rule of journalizing and the modern rule of journalizing. Thereafter we discussed meaning of goods and the rules regarding the goods, when goods are debited, when goods are credited, the types of discount, that is trade discount and cash discount, compound journal entries. Thereafter we discussed opening entry, recording of banking transactions, and entries regarding bad debts, some special entries like bad debts recovered, outstanding expenses, prepaid expenses, depreciation, interest on capital, interest on drawing, expenditure on the installation of machinery and on the erection of building, and some special transaction relating to goods, that is a drawing and goods, goods given as charity, goods distributed as free sample, loss of goods by thefts और loss by fire. सो अभी तक हम लोगों ने जितने भी एडजस्टमेंट जर्नल्स में डिस्कस किए हैं उसी से रिलेटेड आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जितने भी रूल्स, जितने भी एडजस्टमेंट हम लोगों ने पढ़े हैं उसको कैसे प्रैक्टिकली जर्नल एंट्रीज़ में पुट करना है, कैसे हमें उसकी जर्नल एंट्री पास करना है, कैसे मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल रूल्स की हेल्प से हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और उन सारे एडजस्टमेंट को अपने माइंड में रखना है. सो लेट वी स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो with the first question, that is illustration number 17. Generalize the following transaction in the books of Harpreet Brothers. There are 6 transactions given this question. The first one is rupees 1000 due from Rohit for are now bad debts. Number second, goods worth rupees 2000 were used by proprietor. Number third, charge depreciation at the rate of 10% per annum for 2 months on machine costing rupees 30,000. Number 4, provide interest on capital of rupees 1,50,000 at 6% per annum for 9 months. Number 5, Rahul owed us rupees 2,000 become insolvent and a final dividend of rupees 60 paise in a rupee is received from his estate. And number 6, goods costing rupees 8,000 sold to Mohan for rupees 10,000. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एंट्री पास करने के लिए हमें फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं, फॉर्मेट विच इज़ ऑल्सो गिवन इन दिस सॉल्यूशन. द फॉर्मेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स जर्नल and thereafter we create a 5 column, date, particular, LF, amount debit and amount credit. So the first entry is, the first transaction is rupees 1000 due from Rohit are now bad debts. यानी 1000 रुपये रोहित से बाकी था जो bad debts हो गया. तो you know very well bad debts is a loss, so it will be a debited. So the entry will be bad debts account debit to Rohit because Rohit is a giver, but now he become insolvent, so he does not pay, he could not pay his debts. So the entry will be bad debts account debit to Rohit and the amount 1000 and the narration amount due from Rohit written off as bad debts. Number second entry, goods worth rupees 2000 used by proprietor. You know very well proprietor जो है अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए कैश भी विड्रॉ कर सकता है बिजनेस से और गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है. जब वो कैश विड्रॉ करता है तो एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब अगर गुड्स विड्रॉ करता है तो एंट्री विल बी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज. सो द एंट्री विल बी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अमाउंट 2000 in 2000 and the narration is goods taken away by proprietor for personal use. Number third, charge depreciation at the rate of 10% per annum for 2 months on the machine costing 30,000. ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है. यहाँ मशीन की कॉस्ट है 30,000, डेप्रीशिएशन हमें चार्ज करना है 10%, वो भी कितने महीने का, 2 months. तो यू नो वेरी वेल जो 10% रेट दिया है वो पूरे ईयर का है, पूरे साल अगर हम मशीन को यूज़ करते हैं तो 10% डेप्रीशिएशन लगाते हैं.
बट यहाँ पर हम सिर्फ 2 महीने का डेप्रीशिएशन हमें निकालना है. सो द डेप्रीशिएशन वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30,000 10% इंटू 2/12. ये 2/12 हम लोग ऐड करेंगे बिकॉज मशीन पे डेप्रीशिएशन कितने महीने का चार्ज करना है? 2 मंथ्स का. ओके, सो द एंट्री विल बी depreciation account debit to machine. It is a very easy entry for the depreciation, and amount is 500. Why? The amount is 30,000 into 10% into 2/12. Okay, so now the next, provide interest on capital for 1,50,000 at 6% per annum for 9 months. अब यहाँ पे भी देखिए कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 1,50,000. रेट कितना है? 6%. और हमें कितने महीने का इंटरेस्ट देना है? 9 months. So simple, 1,50,000 into 6% into 9/12. ओके, सो यहाँ पे भी आपको 9 मंथ्स का देना है. एक साल में 12 महीने होते हैं. सो हम लोगों ने इंटरेस्ट कितने महीने का प्रोवाइड किया? फॉर द 9 मंथ्स. सो द एंट्री यू नो वेरी वेल, व्हेन वी प्रोवाइड द इंटरेस्ट, द एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, and the value is 6,750. How it will be calculated? 1,50,000 into 10% into 9/12. Next, Rahul owed us ₹2,000, become insolvent, and a final dividend of 60 paise in a rupee is received from his estate. राहुल जिसके पास मेरा 2,000 रुपये था वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी उससे मुझे केवल कितने पैसे मिले? 60 पैसे इन रुपीज़. सो यू नो वेरी वेल, मैंने इसके ट्रिक बताए थे. 60 पैसे में गिवन है तो हम उसको कितना मान लेते हैं? 60%. यानी कितना रुपये 2,000 में से मिला? 2,000 में से मिला 60%, 1,200 रुपये यानी मिले. 800 रुपीज़ नहीं मिले तो 800 को हम लोग क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स. तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट दैट इज 1,200, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 800, and the total value received from the Rahul, that is 2,000. So entry will be cash account debit, bad debts account debit to Rahul 1,200, 800 and 2,000. Okay, the next transaction is goods costing ₹8,000 sold to Mohan for ₹10,000. अब देखिए यहाँ गुड्स था 8,000 का, मोहन को हमने सेल किया है कितने में? 10,000 में. तो यू नो वेरी वेल कि सेल का मतलब ही होता है इंक्लूडिंग प्रॉफिट. ये मैंने बार बार बताया. अगर हम 8,000 का सामान 10,000 में बेच रहे हैं तो 8,000 उसको परचेस के समय लाए होंगे. 10,000 में बेच रहे हैं तो सेल्स हमेशा प्रॉफिट इंक्लूड करके हम यानी प्रॉफिट को हम सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करते. ये मैंने पहले भी बताया. सो हुज अ रिसीवर? मोहन. एंड टू सेल्स, यू नो वेरी वेल, जब गुड्स सेल करते हैं तो टू सेल्स, एंड वैल्यू कौन सी लिखते हैं? जो सेल वैल्यू होती है. सो द लास्ट एंट्री ऑफ दिस ट्रांजेक्शन दैट इज Mohan account debit to sales, goods sold on profit, amount is 10,000. And the two important things regarding this solution, you know very well, कि इस क्वेश्चन का देखिए ये पेज फिल हो गया था, भर गया था. सो उसने क्या किया? पहले जिस पेज पे एंड हुआ वहाँ पे टोटल वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड किया और नेक्स्ट पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया. ओके, और जहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है वहाँ पे उसका ग्रैंड टोटल शो हो रहा है. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. एंड मैं इसलिए कई सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ताकि आप जनरल्स के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके बुक में गिवन है आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें. सो नाउ वी विल मूव टू द इलस्ट्रेशन नंबर 18. Prepare journal from the transaction given below. Here the 8 transaction given in this question. The first transaction, cash paid for installation of machines 500, goods given away as a charity is 2,000, interest charged on capital 7% per annum when capital was 70,000, received ₹1,200 of bad debts written off last year, goods destroyed by fire 2,000, rent outstanding 1,000, interest on drawing 900. Sudhir Kumar, who owned me ₹3,000 and failed to pay the amount, he pays me as a compensation 45 paise in a rupee. So that is a 45%. Okay. So now हम लोग उसको सॉल्यूशन पे चलते. पहले हम इसको सॉल्यूशन बताते हैं फिर उसको मैच कराते हैं. जैसे पहला है कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन. तो यू नो वेरी वेल, जब हम मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए पे करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? एसेट्स अकाउंट की इंस्टॉलेशन अकाउंट, मशीन अकाउंट. यस, मशीन अकाउंट डेबिट टू
कैश दैट इज़ 500. सो उसको मैच करा लेते हैं पहले. यस, इट इज़ करेक्ट. द नरेशन इज कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 500 and 500. नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी. ये नो जब हम इनको गुड्स देते हैं चैरिटी के फॉर्म में तो उसमें सेल का तो कोई इंटेंशन है नहीं, कोई प्रॉफिट इंक्लूजन तो है नहीं. सो द चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज. यहाँ पे हम सेल्स क्रेडिट नहीं करते हैं, परचेज क्रेडिट करते हैं. अमाउंट विल बी 2000. चैरिटी इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज. यस सर, करेक्ट. द अमाउंट विल बी 2000 and 2000. नरेशन इज अ गुड्स गिवन एज अ चैरिटी. द थर्ड ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% व्हेन टोटल कैपिटल वॉज 70,000. सो 70,000 की कैपिटल है, 7% के हिसाब से 4,900 आ गया IOC. यू नो IOC अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. ओके, सो द जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 4,900. Yes sir, correct. The narration is interest charge on capital, that is 4,900. Next, receive rupees 1,200 of a bad debts written off last year. Last year का 1,200 रुपये था जो उसको आपने बैड डेप्स मान लिया था, वो बाद में आपको मिल गया. तो ये क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड बैड डेप्स रिकवर्ड. तो पैसा मिला, सो कैश अकाउंट डेबिट, एंड इट इज़ योर इनकम. विच काइंड ऑफ इनकम? बैड डेप्स रिकवर्ड. So the cash account debit to bad debts recovered 1,200. Okay, the narration is amount received of bad debts written off last year. Okay, next, goods destroyed by fire. You know very well, अगर goods destroyed by fire के लिए तो it is your loss. So the loss by fire account debit to purchase. Goods destroyed by fire account debit to purchase, that is amount is 2,000. So the entry will be loss by fire account debit to purchase, that is 2,000 and 2,000. Okay, next, rent outstanding. You know very well, अगर कोई expense outstanding होता है, so situation में entry क्या होती है? expense account debit to outstanding expense. So the entry will be rent account debit to outstanding rent, amount will be 1,000. इसको मैच करा लेते हैं. यस, इट इज़ करेक्ट. और यहाँ पे पेज जो था फिल हो गया था, इसलिए लास्ट पेज पे क्या किया गया? कैरी फॉरवर्ड. और उसको नेक्स्ट पेज पे क्या किया गया? ब्रॉट फॉरवर्ड. एंड द नरेशन इज रेंट आउटस्टैंडिंग. द नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. यू नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ द इनकम फॉर द बिजनेस, क्योंकि अगर प्रोप्राइटर पर्सनल पर्पज़ के लिए पैसा निकालता है तो उसको उस पर एक इंटरेस्ट देना पड़ता है. सो द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ द इनकम and drawing is a expense for the business. So the drawing account debit to interest on drawing, that is amount is 900. And the last transaction, Sudhir Kumar who owed us me 3,000. यानी रोहित सुधीर कुमार को 3,000 रुपये देना था, लेकिन उन्होंने कितना दिया? 45 पैसे, दैट इज़ 45%. तो 3,000 का कितना मिला होगा? 45%. ₹1,350 मिला होगा, एंड 1,650 क्या हो गया होगा? बैड डेप्स हो गया होगा. यानी रिकवर कितना हुआ? मिला कितना? मिला हमको 1,350 रुपये. और कितना नहीं मिला? 1,650 रुपये. सो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्स अकाउंट डेबिट टू सुधीर कुमार, 1,350 इन अ कैश कॉलम, 1,650 इन द बैड डेप्स, एंड 3,000 द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द सुधीर कुमार. एंड इससे पहले हमने आपको बताया था ड्राइंग की एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो द 900. और उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं? पूरा टोटल कर देते हैं. सो अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड ये सारे क्वेश्चन जैसा भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी तक उस पर टोटली डिपेंड है. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is illustration 21. Generalize the following transaction in the books of Sri Ganesh. 2001 March 5th, purchase furniture worth rupees 20,000 and tools worth rupees 5,000. March 10, open bank account with Dena Bank rupees 5,000. March 12, banked cash sent to bank. बैंक का मतलब होता है पैसा जमा करना बैंक में, that is rupees 1 lakh. March 16, withdrawn from bank by Ganesh for personal use rupees 10,000. Withdrawn from bank rupees 40,000.
March 22 brought share in Colgate Limited for rupees 50,000 and brokerage paid at the rate of 2%. All the payment is made by check. March 24 purchased postage rupees 100. March 25 paid to Ashok out of business fund for the repair of Ganesh residential house rupees 4,000. March 28 paid electricity bill rupees 1800 and miscellaneous expenses rupees 120. March 31 salary unpaid rupees 15,000 and rent due to landlord rupees 3,000. And the last March 31 provide interest on capital rupees 2 lakh at the rate of 8% per annum from 1st April 2000 to 31st March 2001. तो ये क्वेश्चन है, इसका हमने जनरल एंट्री पास करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे. फॉर्मेट इज़ डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट. यानी 5 कॉलम का हम लोग जनरल प्रिपेयर करेंगे एंड टॉप में हेडिंग लिखेंगे जनरल ऑफ श्री गणेश. एंड देयर आफ्टर डेट वाइज हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जैसा कि ट्रांजेक्शन गिवन. द ट्रांजेक्शन नंबर 1, परचेज फर्नीचर. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो है परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 20,000 एंड टूल्स वर्थ रुपीज़ 5,000. यानी जनरल फॉर्मेट बनाने के बाद हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे. सो द फर्स्ट एंट्री हमने फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर डेबिट एंड टूल्स परचेस किया, सो इट इज़ ऑल्सो एसेट्स. सो टूल्स अकाउंट डेबिट एंड टू कैश. सो द फर्स्ट एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश. And the narration is amount paid for purchase of assets 20,000, 5,000 and total 25,000. The second, open bank account with Dena Bank. You know, हम जब भी बैंक अकाउंट खोलते हैं तो बैंक को पैसा देते हैं और हमारे पास से कैश जाता है. सो इन दिस सिचुएशन कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज बैंक इज़ अ रिसीवर. जब भी बैंक अकाउंट खोलते हैं तो बैंक में पैसा डालते हैं. कितना पैसा हम सबमिट किया, डिपॉजिट किया, दैट इज़ 5,000 और कितना कैश मेरे पास से गया होगा 5,000. सो इन दिस सिचुएशन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट डिपॉजिटेड इन देना बैंक 5,000 एंड 5,000. नेक्स्ट वन, बैंक कैश सेंड टू बैंक. बैंक का मतलब ये होता है कि कि बैंक अकाउंट खोलते हैं उस समय तो पैसा जमा करना ही होता है. आप अगर अपनी सेविंग को चाहें तो बैंक अकाउंट में सबमिट कर सकते हैं. जब हम अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म में बोला जाता है बैंक. बैंक मीन्स कैश सेंड टू बैंक रुपीज़ 1 लाख. सो सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बिकॉज बैंक इज़ अ रिसीवर एंड कैश हमारे पास से जाएगा. अमाउंट डिपॉजिटेड इन टू बैंक 1 लाख. नेक्स्ट वन, विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज़ 10,000. यानी गणेश ने अपने पर्सनल पर्पज़ से पैसा निकाला, पर्सनल पर्पज़ के लिए पैसा निकाला. किससे, बैंक से निकाला. तो हुज़ अ गिवर, बैंक. सो बैंक तो क्रेडिट होगा. और जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग. सो द एंट्री विल बी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक. एंड द नरेशन इज अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट इज 10,000 एंड 10,000. नेक्स्ट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक. ये देखिए यहाँ पर विड्रॉन आप कर रहे हैं 40,000 रुपीज़ बैंक से. यहाँ ये चीज़ एक क्लेरिफाई नहीं है कि आप पर्सनल पर्पज़ के लिए पैसा निकालो या ऑफिशियल पर्पज़ के लिए. सो इस सिचुएशन में एकदम क्लियर रहिए कि जब तक क्वेश्चन में ये क्लियरली ना बताए कि आपने पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है तब तक आप उसको पर्सनल पर्पज़ के लिए नहीं मानेंगे. जैसे 16 में क्लियरली बताया हुआ है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकला है इसलिए हम उसको ड्राइंग मानते हैं. लेकिन अगर सिंपल सा सिर्फ लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ या सिर्फ लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक तो उसे हम ऑफिस यूज़ मानेंगे. और जब भी हम पैसा निकालते हैं बैंक से तो पैसा आता है, कैश आता है. हुज़ अ गिवर, बैंक. सो द कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ because there is no additional information. The amount is 40,000 and 40,000. Now March 22 brought share in Colgate Limited for rupees 50,000 and brokerage paid 2%. तो आपने शेयर खरीदा. शेयर खरीदने का मतलब होता है आपने इन्वेस्टमेंट किया. कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 का, और 2% उसका क्या पे किया, ब्रोकरेज. तो टोटल अगर हम पूरा निकालें तो 50,000 का 2% आएगा आपके लिए 1,000. और सारा पेमेंट आपने किससे किया, चेक से. तो जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हुज़ अ गिवर, बैंक. सो इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. हाउ, इन्वेस्टमेंट था 50,000 रुपये का, 1,000 रुपीज़ का था ब्रोकरेज. तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट 51,000 और चेक कितने का काट के दिया होगा आपने, 51,000 का. एंड द नरेशन इज द परचेज ऑफ शेयर इन कोलगेट लिमिटेड फॉर 50,000 एंड ब्रोकरेज पेज 2%.
और यहाँ पे देखिए ये पेज फिल हो गया। सो हम लोगों ने यहाँ पे इस पेज के एंड में कैरी फॉरवर्ड कर दिया, उसके नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। ओके, एंड देयर आफ्टर फिर से हम लोग नेक्स्ट एंट्री से स्टार्ट करेंगे। द नेक्स्ट एंट्री इज परचेज पोस्टेज। आपने पोस्टेज पे किया है, कितने रुपए का पोस्टेज का खर्चा है, 100 रुपीज़ का। तो यू नो जब भी हम पोस्टेज करते हैं तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी क्या आया हमारे पास, पोस्टेज एंड व्हाट गोज कैश। आफ्टर दैट पेड टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस ₹4,000। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अशोक ने बिजनेस में से पैसा निकाला और वो भी गणेश के घर के लिए। गणेश इज़ अ ओनर, यानी हमने अशोक को पे किया गणेश के रेजिडेंशियल हाउस के लिए, को बनाने के लिए और उसको रिपेयर कराने के लिए। यानी गणेश इज़ अ ओनर, गणेश क्या है, ओनर है फॉर्म के, और उन्होंने अपने पर्सनल घर को रिपेयर करने के लिए उन्होंने बिजनेस में से अशोक को पे किया। सो ये ड्राइंग है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा इस सिचुएशन में, और क्या निकला, कैश। सो यहाँ ड्राइंग इसलिए क्योंकि वहाँ उसका पर्सनल हाउस है, और जब भी हम कोई पर्सनल हाउस या किसी एसेट्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज अ ड्राइंग। सो द नरेशन इज अमाउंट पेड फॉर द रिपेयर ऑफ द प्रोप्राइटर रेजिडेंशियल हाउस, द अमाउंट विल बी 4,000 एंड 4,000। एंड पोस्टेज का सेम जैसे मैंने बताया था, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश 100। द नेक्स्ट वन इज पेड बिल ₹1800 एंड मिसलेनियस एक्सपेंस 120। यानी आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल 1800 पे किया और मिसलेनियस पे किया 120। मिसलेनियस मतलब मिक्स एक्सपेंडिचर, छोटे मोटे खर्चों को मिलाकर मिसलेनियस एक्सपेंस बनता है। सो द जनरल एंट्री विल बी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, miscellaneous expense account debit to cash. Electricity 1800, miscellaneous 120, and the total is 1920. And the narration is payment made for electricity bill and miscellaneous expenses. Next, salary unpaid 15,000 and rent due to landlord 3,000. तो you know very well दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। अनपेड का मतलब है आउटस्टैंडिंग और ड्यू का मतलब भी है आउटस्टैंडिंग। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, एनी एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट इज इज पास्ड, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो आप चाहें तो उसका अलग अलग एंट्री पास कर सकते हैं या एक ही में मिक्स करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों की अलग अलग एंट्री पास की है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द सैलरी ड्यू, दैट इज़ 15,000 एंड 15,000। एंड रेंट की आउटस्टैंडिंग की एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट इज़ 3,000 एंड 3,000। एंड द लास्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख एट 8% फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 टू 31 मार्च 2001। तो यू नो वेरी वेल 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2011 में कितने महीने होते हैं, टोटल 12 मंथ्स होते हैं। यानी आपको पूरे साल का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। सो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, 2 लाख का 8%, डेट इज़ 16,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 16,000। सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द जनरल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंड amount is 16,000 and the narration is interest provided on capital. So at the end of this question आप सबको ऐड कर लोगे टोटल करके, एंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल मूव टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। ये थोड़ा सा आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, जितने भी एडजस्टमेंट हम लोगों ने प्रीवियसली वीडियोस में डिस्कस किए हैं। सो आई होप कि आपको अभी तक जितने भी रूल्स समझाए गए हैं, जितने भी एडजस्टमेंट आपको समझाए गए हैं, उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज़ को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी। ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। यानी आपको करना क्या है, इसमें आपको इन सारे अकाउंट्स को पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या करना है, क्लासीफाई करना है। आपको ये बताना है कि ये सारी जो अकाउंट्स दिए हैं, ये अकाउंट्स किस कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल में आते हैं, रियल में आते हैं कि नॉमिनल में आते हैं। अब हम थोड़ा सा और उसको डीप बना देते हैं।
डीप करने का मतलब है अगर पर्सनल में आते हैं तो पर्सनल के किस कैटेगरी में आते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। वहीं रियल में आते हैं तो टेंजिबल में आते हैं कि इंटेंजिबल में आते हैं, और नॉमिनल में है तो इनकम में आएंगे कि एक्सपेंस में कि प्रॉफिट में कि लॉसेस में। सो हम लोग सारे एक्सपेक्टेड डिस्कस करेंगे वन बाई वन। सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द मशीनरी। मशीनरी इज़ व्हाट? मशीनरी इज़ अ प्रॉपर्टी, इट इज़ अ नॉन करेंट एसेट्स, और ये तब क्या होगा आपका, ये होगा हमारा रियल अकाउंट। यस ये रियल अकाउंट है हमारा। ओके बट रियल अकाउंट में कौन सा होगा? रियल में तो दो होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल। तो क्या मशीनरी को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं? यस सर। सो इन दिस सिचुएशन machinery is a real tangible real account. Okay, so the first solution of the machinery is a real. Okay, next is capital. कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसी पर्सन्स को रिप्रेजेंट, सो पर्सनल का है। और अब कैपिटल नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है, ये डिपेंड करेगा कि कैपिटल किसकी है। किसी ह्यूमन बीइंग की है तो नेचुरल होगा, और अगर किसी कंपनी का होगा तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। सो इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि इट इज़ अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रही बात स्टॉक की, तो स्टॉक इज़ अ रियल अकाउंट क्योंकि ये एसेट्स है, और रियल का कौन सा? टेंजिबल। बैड डेब्ट्स इज़ अ नॉमिनल अकाउंट क्योंकि ये एक आपका लॉस है। गुडविल रियल अकाउंट है, और रियल का कौन सा है? इंटेंजिबल है। ओके, एंड सेल्स इज योर इनकम को हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। इनकम कह लो, रेवेन्यू कह लो। ओके, तो हम लोगों ने फर्स्ट 6 अकाउंट्स को क्लासीफाई कर लिया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट 6। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग मीन्स व्हाट? एनी प्रोप्राइटर जब अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। यानी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। अब नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है वो डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल है यानी कोई ह्यूमन बीइंग पैसा निकाल रहा है या कोई कंपनी पैसा निकाली है, तो डिपेंड करता है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सैलरी इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, यू नो। अगर सैलरी रिसीव हो रही होगी तो इनकम होगा, और सैलरी रिसीव हो रही होगी तो इनकम होगा, और सैलरी पेड होगा तो एक्सपेंस होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तो बहुत सिंपल है, पर्सनल का रिप्रेजेंटेटिव। यस ये क्यों? यू नो कि जब भी कोई भी नॉमिनल अकाउंट के आगे प्रीफिक्स ऐड हो जाता है, लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, सो उसको हम लोग पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के क्राइटेरिया में रखते हैं। रही बात इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस क्या है? नॉमिनल है क्योंकि हम ये एक्सपेंस है एक तरह का। अगर प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपकी क्या होती है? ये भी देखिए प्रीफिक्स यूज़ हुआ है, लाइक आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड की तरह, तो ये भी आपका क्या है? पर्सनल है। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी की। वाई? बिकॉज इसके आगे भी प्रीफिक्स ऐड है। रही बात इंटरेस्ट रिसीव की, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज़ योर इनकम। सो इनकम को हम लोग किस में रखते हैं? नॉमिनल के अकाउंट। सो हम लोगों ने बेसिकली आज 12 अकाउंट्स को क्लासीफाई करना सीख गया कि कौन सा पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। फिर देयर आफ्टर वी अंडरस्टैंड कि ये पर्सनल के किस क्राइटेरिया में आता है, रियल के किस क्राइटेरिया में आता है, नॉमिनल के किस क्राइटेरिया में आता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द अनदर क्वेश्चन। स्टेज टू विच क्लास ऑफ अकाउंट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट? फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज कैश। कैश इज एसेट्स। एसेट्स है तो किस अकाउंट में आएगा? रियल। बैंक पर्सनल, क्योंकि यू नो वेरी वेल बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ट्रेडमार्क रियल का, इंटेंजिबल आता है, यू नो। एंड डेटर, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट एनी पर्सन, सो ये पर्सनल अकाउंट के क्राइटेरिया में आएगा। यही थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करना है। क्रेडिटर भी पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, रियल नहीं है। कमीशन रिसीव्ड, ओके,
कैश हो गया रियल, बैंक हो गया पर्सनल, ट्रेडमार्क हो गया रियल, डेटर हो गया पर्सनल, क्रेडिटर ऑल्सो पर्सनल, कमीशन रिसीव नॉमिनल, एक्रूड कमीशन, ये देखिए प्रीफिक्स यूज़ हो गया और एडवांस यूज़ हो गया, तो दोनों ही आपका क्या है, दोनों ही हमारे पर्सनल के रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की हम क्लासीफाई करना सीखें कि कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में आता है, पर्सनल में आता है, रियल में आता है, नॉमिनल में आता है। ओके, सो आई होप कि आप जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपकी बुक में दिए आप उसको सॉल्व करिए। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन और डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, सो प्लीज़ आस्क मी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।